Hey, hello everyone. How are you all? I hope you all are in rosy garden and staying at home safely and studying too. So, as you know that in our previous video, we have talked about the question and answer of chapter 3, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. And as I have said that in our next video, we'll do the book exercise. So here I am with the book exercise. So let's start the video without wasting time. And today we're going to do the book exercise of this chapter 3, Lata Mangeshkar. Okay, so let's start. First book exercise that we are going to do today is on page number 43. And let's understand what the exercise is. These words are connected to either music or theater. Insert them in the correct boxes. Okay, we have two boxes, music and theater. Some words have given to us and we'll have to arrange these words in these both columns. Okay, so let's start. Our first word is actor. Yes, means actor comes in music or theater. Will be in theater. We'll write here actor. What is next? Costumes. This will also here costumes. What is next? Duet. So it will be in music. What is next? Script. This will be in theater. What is next? Tune. This will be here in music. What is next? Concert. It will also be in music. What is next? Dialogue. Dialogue will be in theater. What is next? Notation. So notation will be in music. Notation it means संकेत चिन्ह जिनको हम कह सकते हैं. Okay. What is next? Scale. Scale भी हम म्यूजिक में ही यूज करते हैं. What is next? Scene. Scene हम थिएटर में यूज करते हैं. मीन्स ये रिलेटेड वर्ड्स हैं म्यूजिक और थिएटर से. ओके. एंड व्हाट इज नेक्स्ट? मेलोडी. मेलोडी इन म्यूजिक. नेक्स्ट इज रिदम. व्हाट इज नेक्स्ट? मास्क. एंड नेक्स्ट इज रिसाइटल. दिस विल बी इन म्यूजिक. व्हाट इज नेक्स्ट? Orchestra. Again will be in music. And last is makeup. So makeup will be in theater. Okay students. So that's it. Now we'll do our next exercise. Okay students. Now we'll do our next exercise. And our next exercise is related to adjective. Okay. So before doing that exercise, we should know about something adjective. Okay. So before doing the exercise, let's understand about adjectives. Okay, and adjectives are very important. We'll discuss about adjectives and grammar also. So be patient and be attentive so that you can understand these very easily. Okay, so let's understand something about adjective. Okay, adjective. First of all, we should know what is an adjective. एक एडजेक्टिव होता क्या है? What is the definition of an adjective? Okay, so the words used to describe the quality of a noun or pronoun are called as adjective. वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. जैसे अगर मैं कहूं दिस मार्कर इज ब्लैक. दिस मार्कर इज ब्लैक. तो मार्कर क्या है हमारे पास? नाउन. और कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो हमारे मार्कर की क्वालिटी बता रहा है? ब्लैक इज द वर्ड हियर दैट इज टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ मार्कर. सो मार्कर इज ब्लैक एंड ब्लैक इज एन एडजेक्टिव. ओके. आई हैव शॉर्ट हेयर. आई हैव शॉर्ट हेयर. हेयर इज अ नाउन एंड शॉर्ट इज टेलिंग द क्वालिटी कि छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, पतले हैं, घने हैं. ओके. तो शॉर्ट यहाँ पे है एडजेक्टिव. ओके. आई होप आपको समझ में आया होगा एडजेक्टिव का डेफिनेशन. अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. ओके. सो जो हमारे पास पहला टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके. एडजेक्टिव ऑफ. ओके. सो what will we discuss in adjective of quality? Let's discuss.
we'll discuss about क्यों सबसे आगे सारे कलर और मेरा पर्पल। क्यों सबसे आगे सारे कलर और मेरा फेवरेट पर्पल। इस सॉरी पर्पल नहीं, पर्पल। ये डिस्क्राइब करते हैं हमारे एडजेक्टिव को। किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें किसी नाउन की क्वालिटी बताई हो कि वो बहुत ही अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, गंदा है, अगली है, तो वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर साइज बताया गया है, बड़ा है, छोटा है, तो भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अगर एज बताया है जैसे न्यू, ओल्ड, एंशियंट, तो भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अगर शेप है, शेप रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ओके, तो भी वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अगर बताया गया है कलर है, ब्लू, पर्पल, पिंक, येलो, रेड, कोई भी कलर है, तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगर ओरिजिन बताया गया है जैसे इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू ईट चाइनीज फूड। फूड यहाँ पे नाउन है और चाइनीज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। चाइनीज क्या बता रहा है हमें, ओरिजिन बता रहा है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, मटीरियल। मटीरियल इट मीन्स किससे बना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गोल्ड रिंग। रिंग यहाँ पे नाउन है और गोल्ड यहाँ पे क्या है, मटीरियल है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, पर्पज, किस काम का है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू बाय कुकिंग ऑयल टुडे। कुकिंग ऑयल, बाथिंग सोप, सो यहाँ पे ये क्या है, पर्पज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूं, आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, द लिटिल पपी इज वेरी क्यूट। द लिटिल पपी इज वेरी क्यूट। यहां पे लिटिल क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लिटिल का मतलब क्या है, छोटा, साइज बता रहा है हमें, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर। नंबर इट मीन्स संख्या एंड क्वांटिटी इट मीन्स मात्रा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पहले ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया है। काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते। तो जब भी हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज करते हैं, जैसे सम, मोर, इनफ, लिटिल, फ्यू। ओके, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, सम, मेनी, एनी। अगर ऐसे वर्ड्स आए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इनके बाद का जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चेयर्स आर प्रिपेयर्ड। ऑल द चेयर्स, अब चेयर्स क्या है, चेयर काउंटेबल है, तो ऑल यहाँ पे हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर लिखा हो ऑल मिल्क हैज बीन सोल्ड, सारा दूध बिक चुका है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम देखेंगे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, तो ऑल यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम टू टाइप्स के एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, जिनमें होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल। ओके, जब भी आपको दिखे 1 2 3 4 5 तो वो होंगे कार्डिनल। जब भी दिखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो होते हैं ऑर्डिनल। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूं, आप अपने आप पहचान जाएंगे, जैसे कि I have some books. There is some milk in the pot. Milk in the pot. अब हमारे पास सेम वर्ड है सम, लेकिन हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि बताया था, हम इसके जस्ट बाद वाला नाउन देखते हैं। बुक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, व्हाट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव and demonstrative. Possession it means ownership या हम कह सकते हैं belongings. Okay, for example, this is my pen. Whose pen is this? ये पेन किसका है? Whose? तो हम आंसर देंगे my. तो ये क्या होता है, हमारे पास है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आपने देखा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी, क्या डिफरेंस होता है। सी, पॉजेसिव प्रोनाउन तो आप जानते हैं प्रोनाउन तो हम पहले ही नाउन की जगह पे यूज करते हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको कोई नाउन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव तो होते ही हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। अब आप देख सकते हैं पेन यहाँ पे एक नाउन है और पेन से पहले हमें माय दिया गया है, तो माय यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। ओके, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, आप याद कर सकते हैं माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इन वर्ड्स के बाद आपको कोई भी नाउन दिखे तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, दिस मार्कर इज माइन। दिस मार्कर, मार्कर क्या है, एक नाउन है और नाउन से पहले हमें दिस दिया गया है, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दिस यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए और जो पास में हो, दैट यूज करते हैं सिंगुलर जो पास में हो, दीज यूज करते हैं प्लूरल जो पास में हो, और दोज यूज करते हैं दूर जो प्लूरल हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी गोना डू द एक्सरसाइज एंड आई होप आप खुद से ही आंसर कर देंगे सारे क्वेश्चंस का। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आवर एक्सरसाइज? Unscramble the adjectives highlighted in each sentence, identify their kind and write in the space provided. Okay. The taxi is, and now this is yellow. Okay. और कलर आता है तो क्या होता है, adjective of quality. Okay. What is next? Second, the kitten lapped up all the milk. So this is hungry. The hungry kitten. Okay, so how kitten? Hungry. कैसा kitten? Hungry kitten. So this is also adjective of quality. What is next? Third, Rita has an enormous car. Enormous का मतलब होता है विशाल. So this is also adjective of quality. What is next? Fourth, Dad bought 20 lemons. 20 and lemons, adjective of number, या आप कह सकते हैं adjective of number, या आप कह सकते हैं adjective of quantity. Okay, what is next? Fifth, there is enough water in the canal. Enough, और enough के बाद हमें दिया गया है water. Water क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो enough क्या हो जाता है, enough हो जाता है adjective of quantity. Okay, what is next? Sixth, I found a stone that has a rough surface. Rough, तो rough क्या होगा हमारे पास, adjective of quality. Okay, what is next? Seventh, why don't you clean your room? Your, तुम्हारा, ये क्या हो जाता है हमारे पास, possessive adjective. Okay, what is next? Eighth, The travelers were afraid of that man. That हो जाता है हमारे पास demonstrative adjective. Okay. Now we'll do our next question. Now we'll do the exercise of page number 45. Here are some irregular verbs. Write their present tense forms. हमें past form दिया गया है verb का और उसका हमें present form लिखना है. Okay. So let's start.
फर्स्ट है हमारे पास ran, तो ran का होगा प्रेजेंट फॉर्म run. What is next? Threw, threw का होगा throw. What is next? Next है caught, caught का होगा catch. What is next? Fourth, won, won का होगा win. Next fifth is sang, sang का लिखेंगे हम sing. Next sixth is read, read का होगा read, spelling same रहेगा. Next seventh is kept, kept का हम लिखेंगे keep. Eighth is heard, heard का हम लिखेंगे hear, hear. Next ninth is spent, spent का हम लिखेंगे spend. Next 10th is wrought, wrought का हम लिखेंगे write. Next 11th is war, war का हम लिखेंगे wear. Next 12th is led, led का हम लिखेंगे lead. Okay, so आप learn भी कर सकते हैं. These are going to be really helpful, so learn these. Okay, now we'll do our next exercise. Okay students, our next exercise is on page number 46. Imagine that you made lemon juice yesterday. Complete the paragraphs by using the past tense form of the verb in the brackets. हमें past tense form use करना है. It means we'll have to use verb second form. So let's start. First I filled a jug with 2 glasses of water. Then I took a lemon and cut it into halves. I removed the seeds. Removed, okay? The seeds and squeezed. Squeezed का मतलब क्या होता है? निचोड़ दिया. और squeeze का मतलब क्या होता है? निचोड़ना. Squeezed the juice into the jug. Then I added 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt. After stirring it thoroughly, I poured the juice into glass. Poured. Okay. And now we'll do our next exercise, that is on page number 47. Okay. What is the exercise? Change these words by adding any of 3 prefixes mentioned above. Prefix. What are prefix? Prefix are the words used to add before a word and change its meaning completely. शब्दों के आगे जुड़कर इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देते हैं. And usually we use prefixes to make the opposite of a word. Okay. So the first we have, that is biography. So we added auto and it became autobiography. Next we have degradable. So we'll add bio. In second we'll add bio. This will be biodegradable. Next is copy. We'll add photo. So this will be photocopy. Next fourth is mobile. We will add auto. This will be automobile. Next fifth is gas. We will add bio. This will be biogas. Next sixth, matic. We will add auto. This will be automatic. Next seventh, synthesis. We will add photo. This will be photosynthesis. Next eighth is graph. We will add photo. And you can also add auto. So this will be photograph, either autograph. Okay. And our last exercise is on page number 48. What is the exercise? Is character. CHARACTER. Okay, you can do this. Next is producers. Next, third is memorable. What is next? Fourth, recorded. Next, fifth is alone. And sixth is immortal.
Okay students, so that's it for today. We have completed our chapter 4, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. I hope you have understood too. But still, if you have any doubt, then you can tell us in the comment section. But do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. And do share the video. Thank you.